morning students. Today we are going to start with a new chapter 11th of NCERT, that is thermal properties of metal. This is in continuation with the unit 7 और आज इसमें हम पढ़ेंगे thermal expansions of solids, liquids and gases. Before we start with the thermal expansion, there are two topics which are included in the syllabus as a recapitulation. That is, we are just to revise a bit of this. Heat is a form of energy which produces in us sensation of warmth. और दूसरा term है temperature. Temperature is a degree of hotness or coldness of a body. बहुत डिटेल में हम नहीं करेंगे, but we need to understand the definitions. Heat is a form of energy which produces in us sensation of warmth, and heat can be transferred from one body to another body when they are brought in contact with each other. Heat always transferred from a body at higher temperature to a body at low temperature. जबकि जो temperature है that is degree of hotness or coldness of a body. टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम डिफरेंट स्केल्स यूज करते हैं, जैसे सेंटीग्रेड स्केल है, फ़ारेनहाइट स्केल है, एब्सोल्यूट स्केल है, तो ये हम यूज करते हैं. हम इसको इफ रिक्वायर्ड वी विल बी डिस्कसिंग इन डिटेल ड्यूरिंग इंटरैक्टिव सेशन. राइट, वी विल नाउ कम टू द मेन टॉपिक ऑफ द सिलेबस, दैट इज थर्मल एक्सपेंशन. Thermal expansion क्या है? All the solids, when you heat, they expand. All solids, they want to expand on heating. और ये जो expansion है, इसको हम thermal expansion कहते हैं, क्योंकि thermal का meaning जो है, that is heating, temperature. तो thermal is the term related to heat. तो expansion, this expansion, thermal expansion is there when you heat a solid. अब होता क्या है, क्यों होता है expansion? जब हम एक solid को heat करते हैं. अच्छा, solid में क्या है? It is consisted of atoms and molecules, and they are at a certain distance. They are at a certain equilibrium distance at a given temperature. जब हम उसको गर्म करते हैं तो जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो वाइब्रेशंस हैं वो बढ़ जाती है, उनका एम्पलीट्यूड ज्यादा हो जाता है. उससे क्या है, जो इफेक्टिव डिस्टेंस, इफेक्टिव इंटरएटॉमिक डिस्टेंस है वो इंक्रीज हो जाता है. जब वो इंक्रीज हो जाता है तो जो सॉलिड है वो एक्सपैंड करता है. तो दिस इज द कॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ द सॉलिड्स ऑन हीटिंग. अच्छा, सॉलिड्स जब हम थर्मल एक्सपेंशन की बात करते हैं सॉलिड्स में, तो तीन तरह से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. एक आता है लीनियर एक्सपेंशन, एक आता है सरफेस एक्सपेंशन, एंड वन इज वॉल्यूम एक्सपेंशन. लीनियर एक्सपेंशन की बात करते हैं तो व्हेन लेंथ इज इंक्रीज्ड ऑन हीटिंग, तब क्या होता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, लेट्स सी दैट. दिस इज linear expansion. Linear expansion. Let us say solid rod लीजिए of length L, and when it is heated, then there is a change in length, that is delta L. ठीक है, वहाँ चेंज आता है, एक्सपेंशन होता है, इंक्रीज इन लेंथ इज देयर, दैट इज डेल्टा L. अब ये जो चेंज इन लेंथ है ये डिपेंड करेगा ओरिजिनल लेंथ पे, ये डिपेंड करेगा कितना टेम्परेचर में चेंज आया है, कितना टेम्परेचर में चेंज आया है. तो डेल्टा L अगर हम इसको कंबाइन करें तो इसको हम ये जो प्रोपोर्शनैलिटी साइन है ये रिमूव कर सकते हैं विद टर्म अल्फा L डेल्टा. तो अल्फा जो है दिस इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन.
and this is equal to delta L delta T. Alpha is equal to delta L upon L delta T. Now this is coefficient of linear expansion. We can define it as change in length per unit original length per degree centigrade rise in temperature. Coefficient of linear expansion is defined as change in length per unit original length per degree centigrade rise in temperature. इसको अगर हमें लिखना है, we can write it as L2 minus 1. मान लीजिए ओरिजिनल लेंथ L1 है, L2 after you heat when there is expansion, let us say length becomes L2. This is L1 original length. This is T2 minus T1. L1 is at T1, L2 is at T2. तो इसको हम लिख सकते हैं, this becomes L2 minus L1 is equal to alpha L1 T2 minus T1. तो ये आपके पास न्यू लेंथ वी कैन कैलकुलेट, ये न्यूमेरिकल्स में आपका काम करेगा. दिस इज L2 is equal to L1 plus alpha L1 T2 minus T1. इसमें से आप L1 निकाल भी सकते हो, कॉमन भी निकाल सकते हो, 1 plus alpha T2 minus. Clear? Done. This is linear expansion. This is the coefficient of linear expansion. इसके बाद आता है coefficient of surface expansion. Let us talk about surface expansion. I am going to rub this. ये बिल्कुल एग्जैक्टली सेम इसी तरह करना है जैसे हमने लीनियर एक्सपेंशन में किया है. दिस इज द केस व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सपेंशन ऑफ द सरफेस. when the solid is heated, there is a change in the surface area. This, let us say, this is the surface area of the solid. When it is heated and there is change in the temperature, then let us say it expands by delta S. ये जो चेंज आता है सरफेस एरिया में, ये डिपेंड करता है ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना है, ये डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर कितना है, और इसको हम कंबाइन कर देते हैं S डेल्टा T. और ये जो साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, दिस कैन बी रिमूव्ड बाय कांस्टेंट, जिसको कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन बोलते हैं. कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन कहते हैं. दिस इज इक्वल टू बीटा डेल्टा S, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा S अपॉन S डेल्टा T. तो कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन क्या होगा? दिस इज defined as change in surface area. Coefficient of surface expansion is defined as change in surface area per unit original area per degree centigrade rise in temperature. Coefficient of linear expansion, coefficient of surface expansion, दोनों के यूनिट्स जो है वो पर डिग्री सेंटीग्रेड. ये देखो, ये भी ऐसे है, ये भी ऐसे है, तो ये तो दोनों कैंसिल हो गए यूनिट्स. तो आपके पास बचा सिर्फ T, वो भी रेसिप्रोकल में. तो आपके पास जो यूनिट्स है वो है पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन. जो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन, इन दोनों के जो यूनिट्स है वो है पर डिग्री सेंटीग्रेड और पर केल्विन. क्लियर? फाइन. इसको भी हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज S2 minus S1. S2 is the after heating, surface area after heating. This is original area. This is original area. This is T2 minus T1, temperature change. इसको हम लिख सकते हैं S2 minus, this we have already done.
T2 minus T1. S2 is equal to S1 plus beta S1 T2 minus T1. S1 कॉमन निकाल लीजिए, 1 plus beta T2 minus T1. This is new surface area after we heat the solid with the change in temperature T2 minus T1. Beta is the coefficient of surface expansion. Clear? अच्छा, इसके बाद आता है after this we come to the next volume expansion. I am going to rub this volume expansion. जब volume expansion की बात आती है, this is volume expansion. When you heat a solid and there is change in the volume, then this change in the volume is, let us say, delta V. V is the original volume of the solid. Now, let this delta V, this change in the volume is directly proportional to, this change in the volume is directly proportional to original volume, directly proportional to change in the temperature. कंबाइन कर दीजिए, ये आ गया साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी. चलो पहले हम सीधा लिखते हैं. साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी कैन बी रिमूव्ड बाय कोएफिशिएंट गामा, जिसको हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड इट इज गिवन बाय डेल्टा V अपॉन V डेल्टा. तो गामा जो कि कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर. कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम पर डिग्री सेंटीग्रेड राइज इन टेम्परेचर, और इसके यूनिट्स भी पर डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन होंगे. इसको भी हम लिख सकते हैं V2 minus V1 is equal to, ये V1, V की जगह V1 डेल्टा T. ये आ गया आपका न्यू वॉल्यूम विल बी, ये बच्चे सारे जो फॉर्मूलाज हैं ये न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे. ये सारे जो मैं निकाल रही हूँ, कैलकुलेट कर रही हूँ, तो यू विल बी using all these formulas in numericals. तो ये आपको याद रखना है सारे formulas. ठीक है? इसके बाद आता है, अब ये हमने निकाल लिया लीनियर एक्सपेंशन, देन सरफेस एक्सपेंशन, वॉल्यूम एक्सपेंशन. अब इनका रिलेशन निकालते हैं. रिलेशन बिटवीन दीज थ्री. लेट अस फाइंड आउट अ रिलेशन बिटवीन दीज थ्री. Consider a solid cube. उसको हीट किया and let us say solid की बात कर रहे हैं ना. Let us say there is change in length delta L is equal to alpha and delta. There is change in surface area delta S is equal to beta S delta T. There is change in volume. Let us say delta V is equal to gamma V delta. इसको हमने हीट किया, तो जो न्यू लेंथ आई है दैट इज L प्लस डेल्टा L. न्यू सरफेस एरिया जो आया है S प्लस डेल्टा S, और न्यू जो वॉल्यूम आया है दैट इज V प्लस डेल्टा V. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सपेंशन अल्फा एंड बीटा. लीनियर एक्सपेंशन एंड सरफेस एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ सरफेस एक्सपेंशन. पहले हम इसका रिलेशन निकालते हैं. लेट अस फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन दीस टू. कैसे करेंगे? सरफेस एक्सपेंशन S प्लस डेल्टा S. हम इसको लिख सकते हैं L प्लस डेल्टा L होल स्क्वायर. लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, या स्क्वायर है तो लेंथ स्क्वायर होगा. तो हमने L प्लस डेल्टा L जो न्यू लेंथ है उसका स्क्वायर ले लिया. दिस इज इक्वल
स्क्वायर बाहर आ गया, दिस इज एल स्क्वायर, ये बाहर आ गया, ये आपका आ गया 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये एल स्क्वायर है, ये आ गया 1 प्लस अल्फा स्क्वायर डेल्टा टी स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल प्लस 2 अल्फा डेल्टा। अब डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल, डेल्टा टी इज वेरी स्मॉल and this is having very small value, alpha is very small, तो आपके पास ये जो टर्म है, तो this can be neglected, so that you are left with 1 l square को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 plus 2 alpha डेल्टा, ये आ गया s प्लस, इसमें से भी s कॉमन निकाल लीजिए 1 प्लस बीटा, ये s कैंसल, तो आपके पास बचा 1 प्लस बीटा डेल्टा टी इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा डेल्टा, ये 1 कैंसल, ये डेल्टा टी कैंसल, बीटा इज इक्वल टू 2 एफ, बीटा इज इक्वल टू 2 एफ। क्लियर, डन। अच्छा, this is how coefficient of surface expansion is related with the coefficient of linear expansion. इसी तरह exactly in the same way we are going to do relation between alpha and gamma, alpha and gamma। अगर बेटे अगर आप क्लास में होते तो मैं आपको बोलती कि एक बार मुझे करके दिखाइए, लेकिन अब आप क्लास में नहीं हो प्रेजेंट, तो ये वाला भी मुझे खुद ही करना है, नहीं तो पहले मैं आपको बोलती एक बार मुझे करके दिखाइए, उसके बाद मैं करती, लेकिन नाउ आई एम गोइंग टू डू इट राइट नाउ। अल्फा एंड गामा, अब अल्फा एंड गामा है तो हम क्या करेंगे, V प्लस डेल्टा, वॉल्यूम है ना, क्योंकि गामा है तो हमें वॉल्यूम एक्सपेंशन लेना है। अल्फा, इसको हमने रिलेट करना है अल्फा के साथ, तो हम क्या करेंगे, अल्फा L प्लस डेल्टा। अब हमने क्योंकि अल्फा एंड गामा का रिलेशन निकालना है, तो डेल्टा V क्या है, गामा V डेल्टा T इज इक्वल टू L प्लस अल्फा L, पहले वाला डेल्टा T होल क्यूब। इसमें से B कॉमन निकाल लीजिए, 1 प्लस गामा डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू L कॉमन निकाल लीजिए, क्यूब है तो इसलिए L क्यूब हो जाएगा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा A प्लस B होल क्यूब। अच्छा, ये L क्यूब है, V के बराबर है, तो ये आ गया। अब इसको ब्रैकेट खोला, A क्यूब प्लस B क्यूब प्लस 3AB इंटू A प्लस B, A प्लस B होल क्यूब का फॉर्मूला। अब इसमें देखो 1 प्लस अल्फा क्यूब डेल्टा T क्यूब प्लस 3 अल्फा डेल्टा T प्लस 3 अल्फा स्क्वायर डेल्टा T स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू 1 प्लस गामा डेल्टा। ये कैंसल, अल्फा इज स्मॉल, negligible अल्फा क्यूब, स्क्वायर अल्फा स्क्वायर स्मॉलर, negligible, we can neglect these terms, we are left with gamma delta T is equal to 3 alpha delta T, we are left with gamma delta T 3 alpha delta T, ये delta T कैंसिल, आपके पास आ गया gamma is equal to 3 alpha। ठीक, तो अब हमारे पास क्या आया, बीटा is equal to 2 alpha, gamma is equal to 3 alpha, which implies alpha is equal to beta by 2, alpha is equal to gamma। तो आपके पास तीनों में रिलेशन क्या आ गया, दिस इज द रिलेशन।
Correct? Fine. This is the relation between this linear expansion, surface expansion and volume expansion of the solids. अब हम बात करते हैं expansion of liquids. Expansion of liquids. ये आपने एक बार लिख के करके देखना। जब अगर क्लास में होगा मैं सारा लिखवा के देती हूँ, लेकिन आप घर में खुद करके लिखा। ठीक है? अभी हम बात करेंगे एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स। जब हम लिक्विड्स को गर्म करते हैं, वो एक्सपेंशन होता है उनका। ठीक है? लेकिन लिक्विड को गर्म करने के लिए आप किसी कंटेनर में डालेंगे, राइट? तो जब हम गर्म करेंगे तो वो जो सॉलिड कंटेनर है तो वो भी एक्सपैंड करेगा, राइट? तो इसका मतलब जो एक्सपेंशन होता है, जो एक्सपेंशन हमें दिखता है, वो तो एपरेंट एक्सपेंशन हुआ। रियल एक्सपेंशन तो वो है जब कंटेनर जो है वो एक्सपैंड नहीं करे। और लेकिन जो हम ऑब्जर्व करते हैं तो जब गर्म किया तो सॉलिड तो गर्म होगा और एक्सपेंशन होगा। तो इसका मतलब जो हम ऑब्जर्व करते हैं, जो हम देखते हैं कि ये एक्सपेंशन हुआ है, दैट इज एपरेंट एक्सपेंशन। तो real expansion, it means there is difference between the real expansion and apparent. Real expansion तब हम बात करते हैं जब हम ये मान के चले कि solids expand नहीं कर रहे। apparent expansion क्या है? जब हम मान के चले, जब हम जो चीज देखते हैं कि actually expansion जो कंटेनर है उसका भी हो रहा है। तो हमारे पास क्या है? real expansion, coefficient of real expansion. Coefficient of real expansion is this is real increase in the volume. Real increase in the volume. Real increase in the volume. Original volume into rising temperature. अब ये केस तब है जब हमने ये अज्यूम किया कि सॉलिड एक्सपैंड नहीं हुआ। अब जो एक्चुअली होता है, जो एपरेंट एक्सपेंशन है, दैट इज एपरेंट एक्सपेंशन, एपरेंट इंक्रीज इन द वॉल्यूम original volume into rising temperature. We have found that gamma R, coefficient of real expansion, is equal to coefficient of apparent expansion and coefficient of volume expansion in case of gases. In case of container. In case of container, coefficient of volume expansion of the container. This is gamma R is equal to gamma A plus gamma G. This is coefficient of apparent expansion, coefficient of real expansion. This is coefficient of volume expansion of the container. मतलब ये कंटेनर का भी हमने लिया, ठीक है? तो that will be the real expansion of the liquids. इसके बाद आता है expansion of gases. Expansion of gases. Expansion of gases क्या है कि जब हम gases को heat करते हैं तो gases expand करेंगे और in comparison to solids and liquid जो gases हैं they are comparatively more dependent
coefficient of volume expansion of the gas, that is inversely proportional to temperature. कैसे आता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं? It is inversely proportional to original temperature. How we calculate? हमें पता है in case of an ideal gas, जो हम गैस इक्वेशन लिखते हैं PV is equal to nRT. When you heat the gas, when the temperature is changed, let us say at constant pressure there is change in the volume, that is delta V, and there is change in temperature, that is delta T. अब ये डिवाइड कर दीजिए, P delta V अपॉन PV nR delta T अपॉन nRT. कैंसिल, ये कैंसिल, ये आपका ये कैंसिल, तो आपके पास आ गया डेल्टा V अपॉन V डेल्टा T, दिस इज इक्वल टू 1. अब ये क्या है? व्हाट इज दिस? चेंज इन वॉल्यूम, per unit volume per degree centigrade rise in temperature. This is nothing but coefficient of volume expansion. Now it is in the case of gases, coefficient of volume in the case of gases, and this is equal to 1/T. This is how we explain the expansion of gases. So this was thermal expansion in case of solids. This was about expansion of gases. This was about expansion of liquids. This was all about today's lecture. Next time we will continue this chapter, thermal properties of matter. Take care.